वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज की वीडियो में थोड़ा बात कर लेंगे ऑप्शंस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। सो ऑप्शंस में बेसिकली आज बात करेंगे चार जो मेन कंपोनेंट होते हैं पे ऑफ चार्ट्स का। बेसिकली पहले कॉल बाय, कॉल सेल एंड पुट बाय, पुट सेल। बेसिकली चार पे ऑफ चार्ट के बारे में बात कर लेंगे पहले, एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं। बिकॉज बहुत लोगों का मिथ है, वो लोग प्रिडिक्ट कुछ और करते हैं और होता कुछ और है एक्चुअली। So there's a huge difference between that left side call writers and the right side put writers. So I will let you know what is the main crux of it. Okay. So without wasting any further time, let's go. So hmm, yes, this one is the payoff. So basically ये material NISM का है, National Institute of Securities Market. So Series 8 का material है. तो this one is call by. Sorry. Call by. ओके, सो बेसिकली कॉल बाय में होता क्या है कि लेट्स से आपका स्ट्राइक प्राइस जो है 17,000, आपने 300 लिया हुआ है। ओके, 17,300 इज योर स्ट्राइक प्राइस। ओके, सो एंड स्पॉट चल रहा है मार्केट में 17,000, तो प्रीमियम आपने पे किया 300 रुपीज, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज -300। एंड व्हेन द मार्केट गोज, like when the market is there at 17,300, then at that point of time your premium still holds 300 bit minus. When it goes up beyond 17,000, 1,300, then it will slightly move to -200, then -100, then goes profitable here. So this is the break even point here. This is the break even point, sorry. Yeah, so 0. This is your break even point, this one, where the situation is no profit no loss, and when you go beyond this, then your profit will start uh, increasing. This one. Okay, so ये है आपका कॉल बाय। ओके, सो चार केसेस होते हैं। जिन लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, एनएसएम की स्टडी करी होगी, तो दे विल हैव द आइडिया व्हाट इज कॉल बाय, कॉल सेल। ओके, सो सेकंड हम आ जाते हैं ये कॉल सेल पे। So this is your call sell. Okay, so basically call buy and call sell की mirror image होती है हमेशा पे ऑफ चार्ट की, and same goes for put buy and put sell. इनकी भी mirror image ही जाती है. Okay, this is call sell. So basically what goes is, this is the bearish market, where when the market falls you will be get huge amount of profits, but there is also a case of unlimited loss, because if the market goes up, so there is no limit for the premium. That is the case. In case of this call buy, there is limited loss. The premium which you have paid is that will only get lost, full and fledged. That will only become worthless basically. So it is written over here that so. Okay, if the index closes below 70,300 at expiry, all options will expire out of money. Example, they are worthless. So if the basically that means अगर OTM हो जाता है आपका सारा, जितना भी आपकी ये कॉल प्राइसिंग है, ये सारी अगर OTM हो जाती है 70,300 के नीचे क्लोज करती है, तो that option will become worthless at the time of expiry. कॉल सेल हो गया. Same goes for put buy. पुट बाय में वही सेम केस है. मार्केट बेरिश वाली है, बेरिश मार्केट होगी, देन ओनली यू विल बी प्रॉफिटेबल. सो लेट्स से आपका दिस इज योर पुट बाय. ओके, एंड लेट्स से आपका जो चल रहा है मार्केट में इस टाइम पे 18,000 की आपने पुट बाय करी हुई है. तो if the market goes beyond 18,000, that if market falls below 18,000, so then only will be get profitable, but not very just below 18,000. So there will be some amount, the break even
जहाँ पे ब्रेक इवन आएगा, लेट्स से 18,000 पे आपने किया एंड आपका प्रीमियम आपने पे किया 100 रुपीज़, ठीक है, दैट विल बी -100 एंड व्हेन द मार्केट फॉल्स बिलो 17,600, so when it crosses the break even then you will get profitable. Okay, here also limited loss and unlimited profits. Okay, but in this case, which is put sell, so loss is unlimited because you are uh, bullish on the reverse price. Basically आप put sell कर रहे हो, so market will be bullish, but the thing is the price may go whatever it it can go, whatever it could go. So the thing is कि इस केस में आपका प्राइस जितना भी प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस होगा. इस केस में अगर आपका मार्केट एक बार बेरिश हो गया तो यू विल फेस अनलिमिटेड लॉसेस. सो दैट इज द केस. लॉस अनलिमिटेड. राइटिंग का थोड़ा इश्यू आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट. लिमिटेड. ओके, सो ये है NSM की सीरीज 8 की बुक है. इसमें पूरा क्या बोलते हैं आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स का पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है. आई हैव आल्सो क्लियर्ड द इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम. सो इट वाज अराउंड इन मे, समवेयर इन मे, इन द मंथ ऑफ मे 2025 तब किया था मैंने. So like yeah, it is quite confusing a lot, but if you are interested in learning equity and derivatives, so you will definitely go through it. I will share the link in my description. Okay, so अब थोड़ा जाते हैं NSE की ऑप्शन चेंज पे. Okay, NSE की ऑप्शन चेंज पे. Okay, so इसको देख के बहुत से लोग गलत एनालाइज करते हैं बेसिकली कि बहुत लोग समझते हैं कि अगर कॉल के ओआईज बढ़ेंगे तो मार्केट विल बुलिश एंड पुट के ओआई बढ़ेंगे तो मार्केट विल बेरिश. नहीं, ऐसा नहीं होता. दिस इज योर कॉल राइटर्स. ये होते हैं कॉल राइटर, मतलब जो कॉल सेल कर रहे हैं, एंड दिस इज योर पुट राइटर्स जो पुट सेल कर रहे हैं. कॉल सेल में भी मैंने आपको बताया क्या होता है, बेरिश होता है. पुट सेल में क्या होता है, बुलिश होता है. तो बेसिकली ये इफेक्ट जो होता है रिवर्स होता है. ओके, अगर यहाँ पे OI बढ़ेंगे तो इट मीन्स द मार्केट इज फॉलिंग. ओके, द मार्केट विल फॉल okay after a certain period of time if this goes beyond the put writers. okay, अभी देखो जैसे इस केस में अगर बढ़ेंगे ये तो मार्केट विल बुलिश. सो निफ्टी की जो ये है हमारी लास्ट क्लोजिंग है 2668 है, 26,068.15. 26,050 की स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं. OI दिखा रहा है 32,779. ओके, 32,779 एंड चेंज इन OI 16,000. चेंज इन OI का मतलब ये OI और ऐड हुए हैं, मतलब कॉल राइटर्स और ज्यादा ऐड हुए हैं जो चाहते हैं मार्केट 16,000 प्लस इंडिविजुअल और चाहते हैं मार्केट गिरे, मार्केट आपकी बेरिश जाए. एंड एट द सेम टाइम 41,000 OI है पुट राइटर्स में. ओके, जो चाहते हैं मार्केट बुलिश जाए. एंड 27,000 ने अपनी पोजीशंस को काटा है, नेगेटिव पोजीशन. तो 41,000 में से 27,000 ने ऑलरेडी काट दी अपनी पोजीशन. तो बेसिकली दे आर आल्सो ट्राइंग टू फॉलोइंग द मार्केट. दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक द मार्केट्स नेगेटिव. सो इसको देख के मेरे को जैसा पता चल रहा है कि थोड़ा मार्केट साइडवेज जा सकता है मंडे को. सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट 26,100 स्ट्राइक प्राइस, तो आप देखो ये OI कितने हैं, 1,20,000 से ऊपर है, 1,21,000 अराउंड नहीं है. और चेंज ऐड हुए 70,000 अप्रोक्सीमेटली और ज्यादा. सो विच मीन्स दैट it is showing a sign of bearish. and at the same time put writers के OI हैं 88,000 something and minus negative हैं जिन्होंने अपने पोजीशन को एग्जिट किया है, as I earlier told you, वो हैं 25,000 के अराउंड. so basically they are trying to make the markets negative. so
ये बहुत अच्छा आप काइट पे भी देख सकते हो इसको, और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, धन, अपस्टॉक्स। ये मैं आपको एनएससी पे दिखा रहा हूँ, एनएससी की वेबसाइट पे है ये ऑप्शन चेन। सो इट्स गुड मेजर। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने में आपको इतनी जल्दी ईजी नहीं होंगी, बिकॉज if you are not into equity and derivatives तो थोड़ा मुश्किल है समझना. So that's why I told you to go through that this NSM book. This will help you a lot in expanding your knowledge in equity and derivative market. बहुत अच्छी बुक है ये NSM ने प्रोवाइड करी है, definitely it will help you. So इसमें और भी चीज़ें हैं like volume, how many trades are happening in a particular day. So this will be live data when the market starts. Okay, IV, implied volatility. So the higher the implied volatility, the more volatility is there in the market, the more fluctuations are there in the market. So implied volatility देखो put के साइड में थोड़ी हल्की सी ज़्यादा आ रही है, call के साइड में थोड़ी कम आ रही है, तो maybe it's a sign of uh, volatility or fluctuations in the market. So um, if I talk about the bid and ask spread, yeah, okay. सो देख सकते हो आप 26,050 पे आस्क जो क्वांटिटी है वो 3825 समथिंग है, और बिट क्वांटिटी 225 है. सो देख सकते हो आप पट की जो बाइंग चल रही है उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा थी लास्ट फ्राइडे में. सो मे बी लास्ट में थोड़ा मार्केट को अप ट्रेंड करने की कोशिश की गई थी, बट ये क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसे जब तक लाइव डेटा नहीं आएगा अपने पास, जो कि मंडे 9:50 से जब मार्केट स्टार्ट होती है तब लाइव डेटा आना शुरू हो जाता है यहाँ पे. सो इट्स अ गुड मेजर टू रिसर्च अबाउट multiple options, particular strike price. You can also say that 26,000 पे देखो आप 95,000 है आपका ये जो है सपोर्ट है. 26,000 वेरी ह्यूज सपोर्ट. अगर ये ब्रेक करता है मंडे को तो डेफिनेटली इट विल गो अराउंड 25,900 और मे बी 25,850 एज वेल. बट अगर थोड़ा सस्टेन कर गया तो मे बी शायद अपने अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाए विच इज 26,150. अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इट विल रीच समवेयर अराउंड 26,250 एंड 26,300. सो ये लेवल्स हैं यहाँ के पर्टिकुलरली. सॉरी. सो ऑप्शंस एंड फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप रट के नहीं सीख सकते. इट इज अ मोर ऑफ इंटरेस्ट. इफ आपका इंटरेस्ट है, इस आपका इंटरेस्ट लाइक करता है इन सब चीज़ों में, सो देन ओनली यू विल try to make indulge yourself into these things, because ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं सारी. लाइक इसमें बहुत चीज़ें होती हैं. डेल्टा मीन्स कि द परसेंटेज चेंज इन योर ऑप्शन प्रीमियम, योर ऑप्शन प्रीमियम विद कॉन्टेक्स्ट और इन कॉन्टेक्स्ट विद द अंडरलाइंग एसेट. सो बहुत सारी चीज़ें, डेल्टा, थीटा, वेगा, रो, बीटा, अल्फा, बहुत सारी चीज़ें हैं. ये सब मैं कवर करूँगा. ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी डाल दिया है इन सब ऑप्शन गिव्स के बारे में. थोड़ा आप गो थ्रू कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एवरीथिंग इज हैज बीन देयर. सो ये था बेसिकली ऑप्शंस के बारे में थोड़ा आज बेसिक. दिस इज वेरी ये आज बस थोड़ा ऐसी बेसिक के लिए था नॉलेज की, ये कैसे ओआई वगैरह देखते हैं. एंड तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं. अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा इसमें कि कैसे आप पर्टिकुलरली ऑप्शन चेन को देख सकते हो और कैसे एनालाइज कर सकते हो. तो एक बार निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए. सो ओआई देखने का ये था मेन जो क्रक्स था कि लेफ्ट साइड में कॉल राइटर्स होते हैं जो मार्केट बेरिश करते हैं, और राइट साइड में आपके पुट राइटर्स जो मार्केट को बुलिश करते हैं बेसिकली. ओके, सो ये था एक इसका मेन क्रक्स. ट्रेडिंग व्यू पे खोल लेते हैं. तेरे से
guys for the delay. पता नहीं थोड़ा टाइम दे रहा है. सो एज पर आवर डिस्कशन जो मैंने आपको बताया था 26,000 जो है बहुत बड़ा सपोर्ट है ट्रेडिंग में खुल गया. मीनवाइल जब तक ये ओपन हो रहा है तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा. ट्रेडिंग इज आई थिंक one of the best software to analyze the charts and the particular indicators which you want to use. So बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है to be honest. आप इसको यूज कर सकते हैं. सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, एक बार में 2 इंडिकेटर लगा सकते हो आप. सारे तो नहीं लगा पाओगे बिकॉज दे चार्ज सर्टेन अमाउंट फॉर प्रीमियम. $26,000 is the major support. $26,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. ओके, देन उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो मे बी मार्केट्स विल फेल डाउन टू समवेयर अराउंड 25,800 पहले जाएंगी, पहला टारगेट अगर 26,000 को ब्रेक करता है मंडे को तो. एंड देन उसके बाद अगर 26,000 को ब्रेक नहीं करता, सस्टेन करके दोबारा से अप ट्रेंड की पोजीशन बनाता है तो 26,200 इज द फर्स्ट वन, द बेसिकली फर्स्ट टारगेट दैट विल रेजिस्टेंस जो होगा वो ब्रेक करेगा 26,200 के रेजिस्टेंस को. एंड देन इट विल गो टू समवेयर अराउंड 26,300 एंड देन गो धीरे-धीरे. सो मेन मंडे को है कि 26,000 को ब्रेक ना करे. बेसिकली अगर ब्रेक करता है तो देन इट विल प्लंज डेफिनेटली. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में कवर करूंगा. दिस इज फॉर जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द OI चार्ट्स एंड कॉल एंड पुट राइटर्स. So that's all guys from my end. Thank you so much guys. If you like the video, please like, comment, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much guys. Bye.